So let's discuss this lock that is known as the shared exclusive lock. So I was telling you that there are two types of locks. One is known as the shared lock and other one is known as exclusive lock. Okay, so shared lock is known as the reading lock, right? And more than one person or more than one transaction can apply shared lock on a single data item. That's why here it is mentioned shared at the same time. If two people are applying shared lock, it is true. Okay, suppose I have applied shared lock on A, right? If suppose Sonu wants to apply shared lock on A, yes, possible. Mehak also wants to apply shared lock on A, possible, right? But if I have applied shared lock on A, anyone else, suppose Nishan wants to apply exclusive lock, not possible. Okay, another scenario. I have applied exclusive lock on A and someone else wants to apply shared lock, not possible. I have applied exclusive lock and someone wants to apply exclusive lock, not possible. So only shared, multiple shares are possible, nothing else is possible. This is clear to all of you? Just write, hurry up, write in the chat box. Okay, so I want to give you one more example here. So suppose many of you, now there is corona, otherwise so many people out of you were booking tickets of movies online. Yes or no? So many of you know how to book tickets of movies online movie ticket booking. You know how to book it? Yes. So suppose Sanjeev says yes. Sanjeev wants to book ticket online. Shivam also wants to book ticket online. And suppose Swapan also wants to book ticket online. And suppose Vicky also wants to book ticket online. Okay. So before booking the ticket, what is the first step? First of all, you look for the seats, right? Which seat is available? If the seats at the top end are available, you prefer that. Okay, if all the seats at the top are filled, so you prefer the seats at the middle. But if all the seats at the middle are full, you prefer the seats at the beginning, first, second, third, fourth line. It happens while बच्चे you are checking the seats only. All these students जिनके मैंने नेम लिए हैं, ये अभी सिर्फ सीट्स चेक कर रहे हैं. इट मीन्स ये उस सिस्टम को सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं. कभी ऐसा हुआ है कि मैंने सिस्टम में लॉग इन किया हो और मैं सीट्स व्यू कर रही हूँ तो दुनिया में किसी और को सीट्स ना दिखी हो? नहीं होता, कभी भी नहीं होता. अगर मैं सीट्स व्यू कर रही हूँ तो हो सकता है अमृतसर में 10 लोग, 1000 लोग और उसी ही हॉल में सीट्स व्यू कर रहे हों. It means all these people are simultaneously only reading. We are only reading. We are only getting the information which seats are available. And simultaneously, any number of people can view this information. It means it is a kind of shared lock. Okay. The second scenario, suppose I want to book a seat now. I have chosen one seat. Now I want to book that seat. Suppose I have chosen the seat number N25. Okay. So once I am booking that N25, suppose I am first. मेरे से पहले किसी ने उसको बुक नहीं किया है. अगर मैंने N25 को बुक करना है, इट मीन्स मेरे लिए, मेरी ट्रांजैक्शन के लिए N25 के ऊपर कौन सा लॉक लग गया है? एक्सक्लूसिव लॉक. ठीक है. Now I am booking that seat. No one else can book that seat. Once I will book that seat, मेरा उस पे बुकिंग हो गया तो वो क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा. उसके बाद जब मेरा प्रोसेस फिनिश भी हो जाएगा, कोई और अगर उस सीट को बुक करने आता है तो उसको क्या दिखेगा कि नहीं, अब ये सीट ऑलरेडी क्या हो चुकी है, बुक हो चुकी है, अब आप इसको बुक नहीं कर सकते. You can apply this exclusive lock on something else. This is the best example of explaining shared and exclusive lock. Shared multiple लोग कर सकते हैं, that is read multiple लोग कर सकते हैं, लेकिन बुक करते वक्त किसी एक ही बंदे को राइट्स मिलते हैं. This is clear to all of you?
Okay बच्चे, so this is one example here. So suppose there are two accounts. Okay, there are two accounts. बैंक में कोई accounts हैं. The name of the first account is A and the name of the other account is B. ठीक है, तो अब ये बैंक अकाउंट्स की बात की गई है ना. बैंक अकाउंट में भी हम कुछ लिखते हैं, तो हमारे लिए बैंक अकाउंट भी कोई ना कोई डेटा है. ठीक है, और देयर आर टू ट्रांजैक्शंस, दो ट्रांजैक्शंस हैं, दो बंदे हैं जिसको हम कह सकते हैं जो दो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कर सकते हैं. एक है T1, वो A और B में चेंजेस कर सकता है, उसके पास राइट्स हैं शेयर्ड लगाने के भी, एक्सक्लूसिव लगाने के भी. और एक T2 है जिसके पास भी उसके ऊपर शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक लगाने के राइट्स हैं. सो बाय शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव आई मीन दैट ये दो बंदे T1 और T2 A और B के ऊपर रीड भी कर सकते हैं. अगर वो शेयर्ड लॉक लगा सकते हैं इकट्ठे, राइट तो कर ही सकते हैं. ठीक है, अब क्या है, जो ट्रांजैक्शन T1 है, जो बंदा है T1, उसने क्या करना है, उसने ट्रांसफर करना है ₹50. किससे, अकाउंट बी से उठाना है और अकाउंट ए में डाल देना है. ठीक है, किससे सबसे पहले उठाना है उसने, अकाउंट बी से, और किसमें, इसमें से उसने डेबिट कर लेना है, अकाउंट बी से माइनस कर देना है और अकाउंट ए में प्लस कर देना. ऐसे होता है ना जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो. सपोज करो अगर मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ महक को, तो माय अकाउंट इज अकाउंट नंबर बी. ठीक है, और जो महक है उसका अकाउंट क्या है, अकाउंट नंबर ए. ठीक है, तो अगर मैं T1 हूँ तो मैं क्या करूंगी, महक के अकाउंट से, सॉरी अपने अकाउंट से जो कि बी नंबर अकाउंट है, उसमें से 50 माइनस करूंगी पहले, तभी उसके अकाउंट में जाएंगे. मेरे अकाउंट से भी तो कम होंगे, राइट. द मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट फर्स्ट. मेरे में से 50 कम हो जाएंगे और महक के ए अकाउंट में 50 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, उसमें 50 ऐड हो जाएंगे. तो अगर मैं बी से ए में ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं T1 हूँ और मैं बी से ए में डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, मनी ट्रांसफर कर रही हूँ, तो आप इस चीज से सहमत हो कि मैं दोनों ही अकाउंट्स को एक्सेस कर रही हूँ. पहले मैं बी में से माइनस कर रही हूँ और जब मैं ए में ट्रांसफर कर रही हूँ तो ए में प्लस हो रहा है. इट मींस दोनों ही अकाउंट्स अपडेट होंगे कि नहीं होंगे, एग्री और नॉट. हाँ जी, yes or no? If I am transferring money from one account to another, so do you agree कि दोनों में ही चेंजेस होते हैं. अब कर कौन रहा है, अब बी कर रहा है. ठीक है, और बी में से हो रहा है. सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सी है, T1. अब उसमें बच्चे पहले क्या करना है, बी में से माइनस करने हैं. माइनस का क्या मतलब है, वो अकाउंट में चेंज कर रहा है. इट मींस राइटिंग इज हैपनिंग. अगर मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपया है और उसमें से मैं 50 निकाल रही हूँ, तो मेरे अकाउंट में राइटिंग होगा, क्योंकि 100 माइनस 50 मेरे अकाउंट में 50 रह जाएंगे. मेरे अकाउंट की वैल्यू चेंज होगी. जब वैल्यू चेंज होती है इट मींस राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है. और अगर आपने एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉकिंग सिस्टम यूज किया हुआ है और आप राइटिंग कर रहे हो, तो इट मींस आपको एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ेगा. तो ट्रांजैक्शन T1 ने सबसे पहले B में से माइनस करने के लिए कौन सा लॉक लगा दिया, लॉक XB. X का क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव. ठीक है, उसने लॉक लगाया कौन सा, X, और किस अकाउंट के ऊपर लगाया, B के ऊपर. ठीक है भाई, अब उसने B में से क्या किया है, ये है रीड किया उसने B मतलब अकाउंट रीड किया, कॉमा ये स्मॉल b क्या है, स्मॉल b है कि उस अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, उसने वो इंफॉर्मेशन रीड किया अकाउंट नंबर बी में से स्मॉल बी मतलब कितना अमाउंट उसमें है, अकाउंट नंबर कैपिटल बी में कितना अमाउंट स्मॉल बी है उसमें. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसके अकाउंट में से कितने माइनस कर दिए, जितना था बैलेंस, सपोज 100 था बैलेंस, उसमें से 50 माइनस कर दिए और वो दोबारा मेरे अकाउंट में रख दिया. इट मींस मेरे अकाउंट में 100 में से 50 गए, तो मेरे अकाउंट में कितना रह गया भाई, 50. अब मेरे अकाउंट में ऑपरेशन हुआ है, 100 था पहले, मैंने रीड किया कि 100 था, अब 100 में से मैंने 50 डिलीट कर दिया एंड आई गॉट ओनली 50 नाउ. ओके, अब 50 मैंने अपडेट कर दिया, अब मुझे 50 लिखना भी तो पड़ेगा. पहले मैंने रीड किया कि 100 है, फिर मैंने 50 माइनस कर दिया. नाउ आई हैव टू राइट दिस इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन, चेंज्ड अकाउंट वैल्यू क्या है, 50 रुपीज रह गए मेरे अकाउंट में. अब मैंने राइट ऑपरेशन लगाया और मैंने बी अकाउंट में अब जो नई वैल्यू है दैट इज 50 वो उसने राइट कर दी. ये सबको क्लियर है, यहाँ तक ये 4 स्टेप्स क्लियर है सबको.
ओके अब मैंने अकाउंट बी में से अपना काम कर लिया है, अब मुझे उसको अनलॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने अब उसको क्या कर दिया है, अनलॉक बी। तो बच्चे आप देखो कि जब तक मेरे पास लॉक है कोई और नहीं लॉक लगा सकता, तो मेरे पास एक्सक्लूसिव है बी के ऊपर, कोई भी इसको शेयर्ड भी नहीं लगा सकता। अच्छी बात है ना, मैं उसमें चेंजेस कर रही हूँ, अगर कोई और इसमें कोई लॉक लगा ले तो हो सकता है वो मेरे चेंजेस से पहले वाली इंफॉर्मेशन रीड कर ले, चेंजेस बाद में हो और वो सोचे कि 100 रुपया ही है और रह क्या गया वो बाद में 50। हो सकता है कोई एक्सक्लूसिव लगाने की कोशिश करे कि मैं भी चेंजेस कर लूं, अच्छी बात तो नहीं है ना, होना तो नहीं ना चाहिए, और हो भी नहीं रहा। मेरे पास एक्सक्लूसिव है तो कोई भी ना रीड कर सकता है ना ही राइट कर सकता है। एक बार मैंने लॉक हटाया, अब बी जो है वो फ्री है, अब इसके ऊपर कोई भी लॉक लग सकता है, शेयर्ड भी एक्सक्लूसिव, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रांजैक्शन बी से अपना काम करवा के अब किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, अकाउंट ए की तरफ। अब उसने उसमें क्रेडिट भी तो करने हैं, उधर पैसे डालने भी हैं। सो हाउ इट इज हैपनिंग, so it is applying lock exclusive on A now. It is reading the account number A and how much money is available, that is small a, कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, जितनी अमाउंट उसने रीड की वहां से उसमें उसने 50 ऐड करके अमाउंट को चेंज कर लिया। जितनी चेंज अमाउंट अब उसने कैलकुलेट की, अब उसने वो क्या कर दी है वहां पे राइट। तो सपोज अगर उसमें 200 रुपया था ए वाले अकाउंट में, तो 200 प्लस 50, 250 इज नाउ द न्यू अमाउंट that is written. Once I have written the data, T1 has written the data, now it is unlocked. Got it? This is clear to all of you? Okay, so now I told you, मैंने आपको बताया था कि T1 भी A और B को एक्सेस करने के राइट्स रखता है, T1 बंदा भी A और B में चेंजेस कर सकता है, और T2 के पास भी राइट्स है ना, T2 भी उसमें राइट्स रखता है। लेकिन आप देखो मुझे जो ट्रांजैक्शन मिली थी वो थी कि T1 जो है वो अकाउंट नंबर B से ट्रांसफर करके A में भेज रहा है, ठीक है। तो जब T1 का काम हुआ इस टाइम पे, ये T1 का काम चल रहा है, ऊपर हेडिंग है ना T1, इट मीन ये सारी ट्रांजैक्शन T1 की चल रही है यहाँ तक। पहले उसने B के ऊपर काम किया, फिर उसने A के ऊपर काम किया। जब T1 ने काम किया, T2 का अगर कोई काम था भी, उसने भी कुछ मनी निकालना था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उसको राइट्स नहीं मिले। अब सपोज करो वो भी कोई इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहता है, तो एक बार T1 का काम खत्म हुआ, अब देखो T2 का काम आ गया। T2 ने क्या किया, सिर्फ उसने लॉक लगाया, कौन सा, सपोज करो T2 सिर्फ रीड ही करना चाहता है कि क्या डेटा है, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे पहले T1 ने B के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया, फिर उसने उसको रिलीज किया यहाँ पे। जब उसने यहाँ पे अनलॉक किया, अब T2 काम कर सकता था, ठीक है। और जब उसने ए पे लगा दिया तो फिर T2 ए को नहीं लगा सकता लॉक, और जब इसने अनलॉक किया तब वो लगा सकता, ठीक है। तो T2 ने वेट किया कि भाई अपना काम कर ले, उसने सबसे पहले लॉक लगाया शेयर्ड ए के ऊपर। उसने शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड ही करना था क्योंकि रीड ही पॉसिबल है, उसने रीड किया कि क्या अमाउंट चेंज हुआ है अब, और उसने उसको अनलॉक कर दिया। उसके बाद फिर उसने लॉक लगाया किसके ऊपर, बी के ऊपर, उसने उसको रीड किया, उसने उसको अनलॉक कर दिया, और उसके बाद उसने जो ए और बी था उसने उसको डिस्प्ले कर दिया कि ए अकाउंट में अब इतना अमाउंट था और बी अकाउंट में अब इतना अमाउंट है, तो दोनों में इतना अमाउंट है। तो एक रैंडम ट्रांजैक्शन T2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर शेयर्ड लॉग लगाना है तो उसने शेयर्ड ए पे लगाया, उसको रीड किया, उसको अनलॉक कर दिया, फिर उसने शेयर्ड बी पे लगाया, उसको रीड किया, उसको अनलॉक कर दिया और डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। बच्चे जब इसने शेयर लगाया, अगर कोई और ट्रांजैक्शन मान लो T1 भी इसके ऊपर शेयर लॉक लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है। ये क्लियर है T2 का काम? यस और नो? ओके बच्चे, अगर मैं इसको एक आपको शेड्यूल बना के दूं, ठीक है, इसको अब हम देखें कि होता कैसे कॉन्करेंटली। तो ये देखो बच्चे, ये T1 है, ठीक है। इसी चीज को अब मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस में जैसे चल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम फास्ट चलाना है हमने, तो हम इसको, ये तो सीक्वेंस में चलाया उसने, है ना, कि इसने एक्सक्लूसिव लगाया, छोड़ा, एक्सक्लूसिव लगाया, एक्सक्लूसिव वाला लॉक छोड़ा, फिर इसने क्या लगाना है, दोनों पे शेयर लगाने। अब देखो T1 का काम मैं आपको समझाऊंगी। पहले T1 ने लॉक लगाना है एक्सक्लूसिव, उसने अकाउंट रीड करना है, उसने उसमें से माइनस क्या करना है 50, अपडेटेड अमाउंट उसने लिखनी है, और उसने उसको क्या कर देना है अनलॉक,
अब देखो बच्चे, इस टाइम के बाद अनलॉक बी के बाद अब बी फ्री है। अब बी के ऊपर कोई और ट्रांजैक्शन शेयर्ड भी लगा सकती है और एक्सक्लूसिव भी लगा सकती है। आप इस चीज से एग्री करते हो? जब T1 ने बी को एक्सक्लूसिव लॉक लगा के अपना काम करके उसको अनलॉक कर दिया, उस टाइम के बाद बी फ्री है ना। लेकिन उस टाइम के दौरान T2 यहाँ पे बी के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रांट, क्या ग्रांट हुआ है उस टाइम पे? एक्सक्लूसिव लॉक। किसको? बी के ऊपर T1 को। ठीक है, ग्रांट किया उसने एक्सक्लूसिव लॉक बी अकाउंट के ऊपर T1 को। अब जब बी अकाउंट के ऊपर T1 को लॉक मिला हुआ है तो T2 उस टाइम पे बी के ऊपर कोई लॉक नहीं लगा सकती। ठीक है, अब उसने क्या किया, लॉक उस टाइम पे, लेकिन वो ए के ऊपर तो लॉक लगा सकती है, उसने लॉक लगा लिया ए के ऊपर शेयर, ग्रांट एस शेयर लॉक ऑन ए टू T2। ये तो पॉसिबल थी तो लग गया, उसने रीड किया, उसको अनलॉक कर दिया। ठीक है, अब उसने अगर बी को लॉक लगाना है, चाहे शेयर्ड लगा सकती है ना इस टाइम पे T1 बी के ऊपर कोई काम नहीं कर सकती। उसने अब लॉक शेयर लगाया बी के ऊपर और उसको रीड किया, उसको अनलॉक किया और दोनों के अमाउंट डिस्प्ले कर दी। ठीक है, अब ए भी अनलॉक है, बी भी अनलॉक है। अब फिर दोबारा T2 को ग्रांट हुआ है एक्सक्लूसिव लॉक ए के ऊपर। हो सकता है लॉक लगा ए के ऊपर, रीड हुआ, अमाउंट एडिड हुई, राइट हुआ और अनलॉक हो गया। ये क्लियर है सबको ये चीज कि इस सीक्वेंस में हम इसको फास्ट कर सकते हैं। अगर इसने उससे पहले की अमाउंट रीड करनी है तो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद की अमाउंट रीड करनी है तो इसके बाद में लगेगा, जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर कैसे लॉक्स लगाता है आपकी परमिशन के अकॉर्डिंगली, ये यहाँ पे एक्सप्लेन है। ओके बच्चे, यस और नो? काफी ढीला रिस्पॉन्स हो गया आप लोगों का, यू आर नॉट रिप्लाइंग। ये सिर्फ बच्चे ये मत सोचो कि ये कैसे हो रहा है, ये सिर्फ आपको सीक्वेंस बता रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक्स के ऊपर लॉक एक्सक्लूसिव लॉक बी के ऊपर लगा हुआ है यहाँ तक, तो T2 उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, उसने उसके बाद उसने बी के ऊपर लॉक छोड़ा, या ए के ऊपर लॉक यहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन उसने यहाँ पे शो किया कि हाँ अब उसने ग्रांट कर दी इन बिटवीन। आप सोचो कि ऐसे ही टाइम स्टैम्प चल रहा है, दुनिया चल रही है। ठीक है, T1 ने बी के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक मांगा। ठीक है, उसने उसे मिल गया क्योंकि उसके ऊपर कोई लॉक नहीं था, रीड हुआ, अमाउंट डिलीट हुई, राइट हुआ, अनलॉक हुआ। जब भी अनलॉक हुआ तभी ट्रांजैक्शन T2 ने ए के ऊपर लॉक मांगा शेयर्ड। तो सिस्टम ने देखा कि ए के ऊपर तो कोई लॉक नहीं लगा हुआ, सो उसने ग्रांट कर दिया, उसने रीड किया, अनलॉक कर दिया। अब उसने बी के ऊपर लॉक मांग लिया, तो बी के ऊपर भी कोई लॉक नहीं चल रहा, तो उसको भी ग्रांट हो गया और अनलॉक कर दिया, उसने डिस्प्ले कर दिया। इसी दौरान T1 फिर एक्टिव हो गई। उसने क्या किया, उसने ए के ऊपर लॉक मांगा। ए के ऊपर लॉक मांगा तो देखा गया कि T2 तो ए के ऊपर कोई लॉक नहीं रख रही, तो ए को ग्रांट कर देते हैं। उसको रीड किया गया, चेंज किया गया, राइट किया गया और अनलॉक किया गया। ठीक है, can T2 apply lock at A while T1 has? Yes, that is possible. ठीक है, ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन T2 जो है वो A के ऊपर लॉक लगा सकती है, पर शर्त ये है कि T1 ने उसके ऊपर लॉक ना लगाया हो। T1 अगर B को लॉक लगा के बैठी हुई है तो T2 अपने A के ऊपर लॉक लगा सकती है, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चे, भूल क्यों सकता है? हाँ भूल सकता है। मैं ये सोनू कह रहा है कि T1 लॉग लगाकर भूल भी सकता है ना, वो आगे आएगी एग्जांपल। T1 लॉग लगा के क्यों भूलेगा? बेवकूफ थोड़ी है वो, नहीं भूलेगा वो। ऐसा सिनेरियो होगा लेकिन वो भूलने वाला नहीं होगा, वो जो भी होगा वो आगे आएगा। ठीक है, जिसमें वो एक दूसरे को बोलेंगे तू लॉक पहले छोड़, वो कहेगा तू लॉक छोड़, वो कहेगा तू लॉक छोड़, वो वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, T2 बोलेगा कि मुझे बी के ऊपर लॉक चाहिए, तू छोड़ दे लॉक। ये कहेगा मुझे ए के ऊपर लॉक चाहिए, तू पहले वो छोड़। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये T3 और T4। सो यहाँ पे देखो बच्चे, अब एक और ट्रांजैक्शन आ गई, ये चीज आपको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, यू शुड वेरीफाई
ये सिर्फ सीक्वेंस में मैंने लिखे हुए हैं और यही चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज के ऊपर जाना। You should verify that the sequence of reads and writes in schedule 1 which leads to an incorrect total of rupees 250 being displayed। अब आप देखो बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, इसने माइनस किया यहाँ पे, ठीक है, इसने अकाउंट में से 50 माइनस कर दिया, ठीक है। और ये जो T2 थी ये सोच रही थी कि मैं जब ये चेंजेस कर लेगा T1, इसमें से 50 डिलीट कर देगा, इसमें 50 प्लस कर देगा, तो उसके बाद मैं रीड करूंगी, ठीक है। और मुझे पता चल जाएगा T1 में कितना है और T2 में कितना है, सॉरी A में कितना है और B में कितना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सो T1 क्या कर रहा है, इट इज डेबिटिंग सम अमाउंट 50 फ्रॉम B एंड क्रेडिटिंग दैट अमाउंट 50 टू A। और जो T2 का पर्पस है वो क्या सोच रहा था कि मैं दोनों का जो अपडेटेड अमाउंट है A का और B का, है ना, -50 और +50 होने के बाद वो मैं रीड करूंगा और उसको ऐड करूंगी, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो अभी सिर्फ B का अमाउंट माइनस हुआ है, B में से अमाउंट क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तभी T2 ने A को भी रीड कर लिया। अभी A में तो चेंजेस बाद में हो रहे हैं ना भाई, उसने A को भी रीड कर लिया, B का उसने चेंज्ड रीड कर लिया, A का उसने ओरिजिनल रीड कर लिया। तो जो वो टोटल यहाँ पे जनरेट कर रहा है A प्लस बी, डू यू एग्री ये सही टोटल है कि गलत टोटल जनरेट होगा यहाँ पे? चैट बॉक्स में लिखो, इट विल बी करेक्ट वन और इट विल बी रॉन्ग वन। बाकियों को भी आंसर करने दो। सारी बच्चे थोड़ी हैं, एक संजीव का रिप्लाई आया है, निशान का आया है, स्वपन का आया है, हाँ, और भी बच्चों के प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ सोनू, मुझे पता था तू थोड़ा स्लो लर्नर है। तो बच्चे, द पर्पस ऑफ T1 क्या करना चाहता था, वो B में से कुछ माइनस करके A में ऐड करना चाहता था। तो अगर B में से माइनस होगा तो अमाउंट चेंज होगी, और A में अगर कुछ ऐड होगा तो अमाउंट चेंज होगी, ठीक है। तो जो T2 था वो क्या करना चाहता था, वो सोच रहा था कि जब इसमें से माइनस होगा, इसमें ऐड होगा, उसके बाद मैं इसकी माइनस अमाउंट जो चेंज्ड अमाउंट है वो रीड करूंगा, और इसकी जो चेंज्ड अमाउंट है वो रीड करूंगा, और दोनों का सम डिस्प्ले करा दूंगा। पर इसने कब किया रीड, यहाँ पे इसने जब B रीड किया तो B तो चेंज हो चुका था, है ना। ये जो लाइन में आप देख रहे हो ये B यहाँ पे चेंज हो चुका है, इसके बाद इसने B को रीड किया, लेकिन इसने A को ऑलरेडी रीड कर दिया है, लेकिन A तो भाई बाद में चेंज हुआ। इट मींस इसने A की सही वैल्यू रीड की है कि नहीं की है, इसने बताओ, ये पूछ रही हूँ, इसने A की सही वैल्यू रीड की है कि नहीं की है, और A प्लस B जो इसने जनरेट किया है दोनों के अकाउंट्स का सम, वो सही है कि नहीं है? ये पूछ रही हूँ, A प्लस B करेक्ट आएगा कि रॉन्ग आएगा? ठीक है, तो जिन्होंने करेक्ट लिखा है वो रॉन्ग है, जिन्होंने रॉन्ग लिखा है वो करेक्ट है, ठीक है। तो मोस्टली बिहार के बच्चों ने रॉन्ग लिखा है, नवजीत ने भी रॉन्ग करेक्ट लिखा है, सॉरी, यहाँ पे नवजीत ने आंसर रॉन्ग दिया है, गलत आंसर दिया है, और सारे बिहार के बच्चों ने आंसर गलत दिया है, ठीक है। इसका आंसर आएगा रॉन्ग, ये सही आउटपुट नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है भाई, ओके। अगर ये ऑपरेशन बी ए के ऊपर ऑपरेशन ए में ऑपरेशन के बाद यहाँ पे होता तो चेंजेस सही आते। सोनू आपका आंसर सही है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है, अब आप देखो T3 एंड T4 क्या काम कर रहे हैं। T3 ने B के ऊपर लॉक लगाया, उसने रीड किया B, T3 वही है जो T1 और T2 काम कर रहे थे ना, T1 और T2 काम, T1 क्या कर रहा था, डिलीट कर रहा था एक में से अमाउंट, दूसरे में ऐड कर रहा था, और T4 उसको रीड करके सम करवा रहा था। अब वो T3 और T4 करेंगे, कैसे कर रहे हैं देखो, उसमें तो रॉन्ग आंसर आ गया। अब ये अपना नया सिस्टम लेके आए हैं,
T3 ने बी में लॉक लगाया, कौन सा, एक्सक्लूसिव, रीड किया बी को, उसमें से 50 माइनस कर दिया और उसको राइट कर दिया बी में। तभी तभी T4 ने ए को लॉक लगा दिया और उसने क्या किया, रीड किया ए को, उसने क्या किया, रीड किया ए को। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखो, सोनू आप देखो यहाँ पे, T3 ने रीड किया किसको, एक्सक्लूसिव लॉक सॉरी लगाया बी को, उसमें से रीड किया, चेंजेस किए, राइट किए, लेकिन उसने उसको अनलॉक नहीं किया, उसने उसको अनलॉक नहीं किया। बी के ऊपर काम करने के बाद वो कहता है कि मैं बी को अनलॉक नहीं करूंगा, पहले मुझे ए के ऊपर भी लॉक लगाना है। ठीक है, तो इसने बी को अनलॉक नहीं किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अनलॉक नहीं है, जस्ट वेट। सॉरी, सो बच्चे यहाँ पे बी ने बी के ऊपर राइट करके T3 ने अनलॉक नहीं किया। ठीक है, बी को अनलॉक नहीं किया, तब तक ए के ऊपर कोई भी लॉक नहीं था, तो T4 ने ए के ऊपर लॉक लगा लिया, उसने उसको रीड किया। ठीक है, अब वो नहीं अनलॉक कर रहा उसको, वो भी कह रहा है कि मुझे बी का लॉक चाहिए पहले। ठीक है, तो वो लॉक किसको करने की कोशिश कर रहा है, बी के ऊपर। ठीक है, अब इस चीज में मत कंफ्यूज होना, एक ट्रांजैक्शन अगर बी के ऊपर एक लॉक लगा के बैठी हुई है तो वो दूसरे किसी आइटम के ऊपर भी लॉक साइमल्टेनियसली लगा सकती है, ये चीज पॉसिबल है। एक आइटम के ऊपर बी आइटम के ऊपर एक टाइम पे एक ही लॉक पॉसिबल है, ये तो क्लियर है कि बी के ऊपर अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो कोई और लॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर T3 ने बी के ऊपर एक लॉक लगाया हुआ है तो वो किसी और आइटम सपोज ए या सी के ऊपर भी लॉक लगा सकती है। ठीक है, अब उसने बी के ऊपर लॉक लगाया, अब उसने उसको राइट किया, राइट करने के बाद अब उसने किसमें राइट करना है, ए में, तो उसने बी को नहीं छोड़ा अभी, अब वो ए को लॉक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ए के ऊपर लॉक नहीं था, इसके इन बिटवीन T4 ने ए के ऊपर लॉक लगा लिया है, उसने उसको रीड किया, ए में से रीड करने के बाद उसका दूसरा काम क्या है कि वो बी में से भी रीड करे, तो उसने इसके ऊपर भी शेयर्ड लॉक लगाने की कोशिश की, पर इसके ऊपर बी के ऊपर यहाँ पे शेयर्ड लॉक लगाने की कोशिश की, बट बी इज ऑलरेडी लॉक्ड बाय T3, तो यहाँ पे बी के लिए ये लॉक लगा रहा है, लेकिन इसको क्या करनी पड़ रही, वेट वेट। ठीक है, यहाँ पे उसको क्या करनी पड़ रही है, वेट वेट, और इधर ये बी के ऊपर लॉक लगा के छोड़ नहीं रहा और किसको लॉक लगाने की कोशिश कर रहा है, ए को, और इसको भी क्या करनी पड़ रही है, वेट वेट। ये सिनेरियो क्लियर है आपको? हरिया फरिया फटाफट लिखो इसको। बी के ऊपर, ये बी के ऊपर लॉक लगा के बैठा हुआ है, चेंजेस कर दिए, उसके बाद सो गया ये। ठीक है, ए के ऊपर अभी इसने लॉक लगाने के बारे में नहीं सोचा था अभी। ठीक है, तो फटाफट किसने मौका यहाँ पे संभाल लिया, T4 ने, उसने कहा चलो वो अपना काम शुरू कर बैठा है, उसने ए के ऊपर लॉक लगाया, उसने उसको मिल गया, उसने उसको रीड किया, अब वो कहता बी के ऊपर भी लॉक लगा के उसको रीड करूंगा फिर सम करूंगा, उसने बी के ऊपर लॉक लगाने की कोशिश की, इस टाइम तो बी के ऊपर अभी भी लॉक चल रहा है, ये देखो चल रहा है, तो उसको वेट करना पड़ा। इधर ये भाई जाग पड़े हैं। ठीक है, इन्होंने सोचा कि मैं अभी ए को लॉक लगाता हूँ,
इधर ए को लॉक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ए ऑलरेडी यहाँ पे लॉक्ड है, इसको भी करना पड़ा वेट वेट। ये ये किसके लिए वेट कर रहा है? T3 ए के लिए, T3 ए के लिए वेट कर रहा है और ये भाई छोड़ नहीं रहे उसको, ये उसके ऊपर लॉक लगा के बैठे हुए हैं। और T4 बी के लिए वेट कर रहे हैं, जिसको ये लॉक लगा के वेट कर रहे हैं, किसके लिए? ए के लिए। ये लॉक लगा के बी को ए के लिए वेट कर रहे हैं, ये लॉक लगा के ए को, सॉरी, ये लॉक लगा के बी को ए के लिए वेट कर रहे हैं और ये लॉक लगा के ए को बी के लिए वेट कर रहे हैं। ये क्या? डेड एंड, डेड लॉक, ये डेड लॉक है। ये कहेगा तू उसको रिलीज कर, मेरा काम मुझे करना है पहले, ये कहेगा तू उसको रिलीज कर, मेरा काम मुझे पहले करना है। ठीक है, सो द यूज ऑफ लॉकिंग कैन लीड टू एन अनडिजायरेबल सिचुएशन। ठीक है, T3 एंड T4 जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर गड़बड़ा गए हैं। ठीक है, ये क्या है? डेडलॉक। अब मैं डेडलॉक आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। T3 क्या कर रहा है? ए के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाने की कोशिश कर रहा है, यही कर रहा है ना ये T3 भाई, ये T3 ए के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाने की कोशिश कर रहा है। ये T3 है, ये T4 है। ठीक है, T3 कह रहा है T4 को मुझे एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है ए के ऊपर, T4 कह रहा है T3 को मुझे शेयर्ड लॉक लगाना है बी के ऊपर। ऐसा ही था ना? T3 T4 को कह रहा है मुझे, आप ए छोड़ो, मुझे उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाना है। T4 इज सेइंग T3 आप बी को छोड़ो, मैंने उसके ऊपर शेयर लॉक लगाना है। तो ये तो कभी भी नहीं, ये तो कभी नहीं सॉल्व होगा। ये अपना नहीं, अपना डाटा आइटम नहीं छोड़ेगा, ये अपना डेटा आइटम नहीं छोड़ेगा, और ऊपर से दूसरे का डेटा आइटम मांग रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग अ केस ऑफ डेडलॉक, thus we have arrived at a stage जिसमें दोनों ही ट्रांजैक्शंस आगे नहीं बढ़ पाएंगी, where neither of these transactions can ever proceed with its normal execution. This situation is called deadlock. This is also very stubborn, ढीठ है, this is also very stubborn, दोनों ही अड़ गए हैं। मैं अपना डाटा आइटम नहीं छोड़ूंगा, ऊपर से तेरे डेटा आइटम के ऊपर लॉक लगाऊंगा। ये कह रहा है अपना डेटा आइटम नहीं छोड़ूंगा, ऊपर से तेरे डेटा आइटम के ऊपर भी लॉक लगाना चाहता हूं। हो गया ना डेडलॉक, डेडलॉक, डेड एंड। क्लियर है बच्चे ये चीज? ठीक है, चलो भाई, मेरा तो गला बैठ गया है, सो कुछ पोल्स यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, so I am launching some polls in front of you, just go through it. ओके बच्चे, मैं इसको बंद कर रही हूँ पोल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था रीड ओनली। शेयर्ड मोड जो है वो सिर्फ रीड ओनली लॉक जो है वो अलाउ करता है। ठीक है, और अभी मेरे पास सेकंड पोल है एक, देखो उसको।
1 मिनट से ज्यादा हो गया, मैं इसको एंड कर रही हूँ पोल को। तो जो एक्सक्लूसिव मोड है ये आपको दोनों रीड एंड राइट करने की परमिशन देता है, बोथ रीड एंड राइट। ओके बच्चे, थर्ड पोल है। बच्चे मैं इसको बंद कर रही हूँ पोल को। अभी कम बच्चे पोल जो है कुछ आंसर कर रहे हैं, तो ये आपकी अटेंडेंस में भी ये चीज आती है। अगर आप पोल नहीं ना अटेंड करते तो आपकी अटेंडेंस में नहीं लगती। तो डेडलॉक जो है इट्स अ सिचुएशन वेयर ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अदर प्रोसेसेस टू लीव सम रिसोर्सेज, पर साथ में इट्स आल्सो अ प्रोसेस वेयर प्रोसेसेस स्टॉप वर्किंग। आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो काम करना भी बंद कर देती है। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट अकेला नहीं था, फर्स्ट और सेकंड दोनों इकट्ठे थे, तो आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो अमरजीत, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन ने किसी भी डेटा आइटम के ऊपर शेयर लॉक या कोई भी लॉक लगाया, अगर तो शेयर लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, इट मींस वो आइटम ऑलरेडी लॉक्ड है। किस मोड में? शेयर्ड मोड में। अब शेयर्ड मोड में जो फैसिलिटीज हैं वो और तरह की है ना, रीडिंग की फैसिलिटीज है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर उसी टाइम के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा सकते, चाहे कि वो आपने उसी आइटम के ऊपर लगाना है। तो पहले शेयर्ड रिलीज होगा, तो उसके राइट्स भी रिलीज हो जाएंगे सिर्फ रीडिंग वाले, उसके बाद वो एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो लगाएगा। ठीक है, एक बार लॉक लग गया है तो वो रिलीज होना ही होना है, क्योंकि हर एक लॉक के अपनी परमिशंस है, कोई रीडिंग का है, कोई रीडिंग एंड राइटिंग का। ठीक है, तो कोई और किसी का डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट, मैंने आपको बाइनरी लॉक्स एक्सप्लेन किए। बाइनरी लॉक्स के मैंने आपको शॉर्टकमिंग्स जो थे, ड्रॉबैक्स थे, आई हैव एक्सप्लेन दैट। देन वी मूव्ड टू दिस एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड लॉक्स जो हैं, ये काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसमें भी डेड लॉक का जो इशू है वो आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम वी आर शिफ्टिंग टू वन थर्ड टाइप ऑफ लॉकिंग सिस्टम, और ये दोनों अगर आपको क्लियर है देन आई विल मूव। जस्ट लेट मी नो इफ दीज टू types of locks are clear or not. Okay, Max says no doubt. Amarjit says clear. Any others if there is any doubt you can ask me a question. अमरजीत का क्वेश्चन था कि अगर एक सपोज करो ट्रांजैक्शन T1 ने एक अकाउंट ए के ऊपर शेयर्ड लॉक लगाया है, अब उसका मन बदल गया कि मैं इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाना चाहता हूँ, तो क्या वो पहले शेयर्ड लॉक रिलीज करेगा कि सीधा एक्सक्लूसिव लगा लेगा? तो इसमें खुद ही आंसर है कि वो पहले शेयर्ड लॉक रिलीज करेगा, तो सिर्फ रीडिंग के परमिशन जो है वो उड़ जाएंगे साथ ही, और उसके बाद वो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद डन, निशांत सिंह डन, क्या डन हो गया निशांत सिंह? अब मैं आपके साथ फिर अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्लियर, ओके। सो बच्चे पिटफॉल्स क्या है यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया हुआ है, ये मैं किसी और पीपीटी से भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि T3 और ना ही T3 की प्रोग्रेस हो रही है ना ही T4 की, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लॉग्स जो हैं वो लगा के बैठे हुए हैं। वो SB के ऊपर T4 लगा के बैठा हुआ है, T3 को वेट करवा रहा है कि वो रिलीज नहीं करना चाह रहा। सिमिलरली A के ऊपर लॉग लगा के T4 T3 को जो है वेट करवा रहा है, ठीक है? इसको हम डेडलॉक कहते हैं, ठीक है? और इसको हैंडल करने के लिए, टू हैंडल अ डेडलॉक, एक को तो अपनी जिद जो है वो छोड़नी पड़ेगी। वन ऑफ T3 और T4 दोनों में से एनीवन मस्ट बी रोल्ड बैक। रोल्ड बैक मतलब जो उन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली हुई है, अब उसने अनलॉक नहीं किया हुआ। रोल्ड बैक मतलब उसको बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पे उसने इसको लॉक किया हुआ था वहां पे जाके उसको अनलॉक करना पड़ेगा। रोल्ड बैक का क्या मतलब है? जो काम हुआ है वो भी उसको दोबारा वापस लेके जाना पड़ेगा, है ना? आपको पता है T3 ने B के ऊपर लॉक लगा के उसमें से कुछ माइनस कर लिया हुआ है। अब T3 क्या कह रहा है कि ठीक है भाई T4 तू तो एक नंबर का ढीठ है, T3 हूँ मैं अपना जिद छोड़ देता हूँ, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। तो रिलीज करने का क्या मतलब है? वो अपना सारा काम भी क्या करेगा? बैक ट्रैक करेगा। जो उसने अब तक काम किया था उसको उसमें से माइनस किया था वो भी उसको छोड़ के बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे, जहां पे उसने उसको लॉक लगाने की कोशिश की गई थी, वहां तक जाना पड़ेगा उसको, वहां पे अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब उसका काम भी वहां पे शो नहीं होगा। अब बच्चे इसमें अगर तो ये नहीं करते ऐसा काम, ठीक है, तो डेडलॉक जो है वो रहेगा। उसके अलावा स्टारवेशन भी है। स्टारवेशन इज अनदर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है वो बहुत बुरी तरह से डिजाइन किया गया है, तो एक और डेडलॉक के अलावा एक और चीज हो सकती है, दैट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या है? कहते हैं ना, आई एम स्टारविंग। स्टारविंग मीन्स मुझे बहुत भूख लगी, मैं कब से भूखा हूँ या मैं कब से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो दैट इज नोन एज स्टारवेशन। अब यहाँ पे खाने की बात क्यों हो रही है? जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसको खाने की कोशिश कर रही है? आइटम्स को। मैं लॉक करूंगी तो इसके राइट्स मेरे पास हैं, तो लॉक करने का क्या मतलब है? मैं इसको खाऊं, ठीक है? कोई और उसको खाने की कोशिश कर रहा है, कोई और उसको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करंट वाली ट्रांजैक्शन उसको परमिशन नहीं दे रही। इट्स नॉट अलाउड दैट टू ईट इट बिकॉज करंटली लॉक उसके पास है। तो जो लॉक लगाएगा वो क्या करेगा? खाएगा। और जो लॉक नहीं लगा पा रहा है वो क्या है? वो स्टार्विंग की फेज में चला जाएगा। और अगर ये रिलीज ही नहीं कर रहा तो दूसरा तो पक्का ही स्टारवेशन में चला जाएगा, ठीक है? A transaction may be waiting for an X lock on an item while a sequence of other transactions request and are granted on S lock on the same item. मान लो, इसकी मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ। A, पिछले सारी चीजें भूल जाओ, डेटा आइटम A है। डेटा आइटम A के ऊपर किसी ने शेयर्ड लॉक लगा लिया। T1 ने शेयर्ड लॉक लगा लिया, T2 शेयर्ड लॉक लगाना चाहता है, उसको भी मिल गया, शेयर्ड तो मिल ही जाना है। T3 भी शेयर्ड लॉक लगाना चाहता है, उसको भी मिल गया। T4 भी शेयर्ड लगा रहा है, ठीक है? अभी शेयर्ड पिछले वाले छोड़ी जा रहे हैं, नए वाले लगाई जा रहे हैं। किसी एक के पास शेयर्ड लॉक है और नए लगाई जा रहे हैं और नए लगाई जा रहे हैं। पिछले वाले कुछ छोड़ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी छोड़ रहे। तो शेयर्ड लॉक का राइट हर एक को मिल ही जा रहा है, 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 और एंड ही नहीं हो रहा। इतना लंबा टाइम, इतनी रिक्वेस्ट रीडिंग 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 की आ गई कि एक बंदा बैठा हुआ है बीच में। एक ट्रांजैक्शन मान लो 1000 नंबर ट्रांजैक्शन है, वो वेट कर रही है कि मैं इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा लूं, लेकिन शेयर्ड लॉक की इतनी रिक्वेस्ट है कि शेयर ही लगी जा रहा है। तो जो एक्सक्लूसिव लॉक लगाना चाह रहा है उसको वो आइटम नहीं मिल रही, वो भूखा मर जाएगा उसके, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? स्टारवेशन। स्टारवेशन की उसको इतनी वेट करवाई जा रही है, इतनी वेट करवाई जा रही है कि वो स्टारवेशन की स्टेज में। आप सुबह खाओ, दोपहर को खा लो, तो इसको ये नहीं कहते भूखा मरना। सुबह खा के आपको 10 दिन के बाद खाना मिले, इसको कहते हैं स्टारवेशन, ठीक है? तो ऐसे ही वो जरा सुबह से वेट कर रहा है और 10 दिन लग गए हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 दिन लग गए हैं और बाकी रीडिंग 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 करी जा रहे हैं, वो बेचारा वेट कर रहा है कि कब कोई रीडिंग का
काम बंद करे और मैं इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। द सेम ट्रांजेक्शन इज रिपीटेडली रोल्ड बैक ड्यू टू डेडलॉक। इस केस में भी इसको रोल बैक ही करना पड़ेगा। अब उसको नहीं मिल रहा है तो ट्रांजेक्शन को तोड़ना कैसे है, रीड 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 कैसे बंद करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जब फर्स्ट रीड मिला था वहां से वहां पे रोल बैक सिस्टम को वहां तक वापस लेके दोबारा सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर है जो ग्रांट कर रहा है एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड लॉक, है ना, उसको ये स्टारवेशन को भी मैनेज करना आना चाहिए और उसको और किसको मैनेज करना आना चाहिए, डेडलॉक को। तो स्टारवेशन एक डिफरेंट वे है बच्चे, एक डिफरेंट टेक्निक है, एक डिफरेंट प्रोसेस है। स्टारवेशन में उसको काफी देर तक वेट करवाई जाती है, उसको लगता है अब भी मिल जाएगा, अब भी मुझे सोर्स मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा, लेकिन उसको काफी टाइम वेट करनी पड़ती है। लेकिन डेडलॉक में तो वो अड़के बैठ जाते हैं, वो एक दूसरे के लिए वेट करते हैं कि तू रिलीज कर, वो कह रहा तेरा मुझे पहले डेटा आइटम चाहिए, वो कह रहा है तेरा मुझे पहले डेटा आइटम चाहिए, एक दूसरे के अपना वाला छोड़ नहीं रहे जो दूसरे को चाहिए, ठीक है। तो वो दूसरी सिचुएशन है, ठीक है। अब बच्चे इसका जो नया सोल्यूशन जो देखते हैं वो है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, पेपर में कई बार ऐसे भी आ जाता है, नॉट आई एम एबल टू राइट हियर। टू फेज को हम 2PL, टू ऐसे टू लिख के जैसे हम लिखते हैं नंबर में 2P और L, है ना, 2PL प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। यही कहना चाहती थी मैं, और यहाँ पे मेरे पास चेंजेस होने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसको क्या कहते हैं, 2PL, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल क्या है बच्चे, दिस इज अनदर वे ऑफ अप्लाइंग लॉक्स, ठीक है। इसमें दो फेजेस होते हैं, ठीक है। और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कोशिश किया जाता है कि पैरेलली ना अड़े दोनों, कोशिश की जाए तो पहले को एक मिल जाए फिर दूसरे को मिल जाए वही चीज, तो सीरियल में सीक्वेंस में चले, है ना। अगर मेरे पास कोई राइट्स हैं, मैं सारा काम कर लूं, ठीक है, 10 मिनट के लिए मेरे पास राइट्स हैं पहले, तो मैं वो काम कर लूं, उसके बाद नेक्स्ट वाले को वो ग्रांट किया जाए। तो इट मींस कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कंफ्लिक्ट तभी होता है जब हम पैरेलल काम करने की कोशिश करते हैं और करते भी एक दूसरे के रिसोर्सेज के ऊपर है, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि कंफ्लिक्ट जो है वो उसको सीरियलाइजेबल शेड्यूल में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। इसमें बच्चे टू फेज लॉकिंग है, टू, तो टू कहाँ से वर्ड आया है, इसमें दो फेजेस हैं, टू फेज मतलब दो फेजेस हैं। फेज वन को क्या कहते हैं, ग्रोइंग फेज, इसमें ग्रो हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है वो हम बात करेंगे। फेज टू को क्या कहते हैं, श्रिंकिंग फेज, कोई चीज पहले ग्रो होती है, ठीक है, फिर वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। कोई एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं, सपोज पिंपल ही है, इट फर्स्ट ग्रोज, किसी के भी फेस के ऊपर अगर पिंपल होता है इट फर्स्ट ग्रोज, ठीक है, एंड देन इट श्रिंक्स, गो बैक, ठीक है। तो दो फेजेस हैं, और दो फेजेस कौन कौन से, ग्रोइंग फेज और दूसरा क्या है, श्रिंकिंग फेज। चलो इसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। ग्रोइंग फेज क्या है, ये मेरा ग्रोइंग फेज है, इट मींस इस फेज के में मैं लॉक्स लगा सकती हूँ, ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन लॉक्स। तो ग्रोइंग फेज में सिर्फ लॉक्स लगाने की परमिशन मिलती है। अब ग्रोइंग फेज है तो ग्रो कौन कर रहे हैं, लॉक्स ग्रो कर रहे हैं, लॉक्स लगा लो, लॉक्स लगा लो, लॉक्स लगा लो। और ग्रोइंग फेज में ट्रांजैक्शन कभी भी लॉक्स रिलीज नहीं करेगी, वो सिर्फ लॉक्स एक्वायर करेगी, नए नए लॉक्स लगा सकती है, एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर। पर ग्रोइंग फेज चल रहा है तो वो ट्रांजैक्शन लॉक्स रिलीज नहीं कर सकती। उसके बाद क्या आता है, श्रिंकिंग फेज। उस केस में लॉक्स क्या होते हैं, जो लॉक्स ग्रोइंग फेज में लगे होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, अनलॉक कर दिए जाते हैं। और जैसे ग्रोइंग फेज में हम लॉक रिलीज नहीं कर सकते, वैसे ही श्रिंकिंग फेज में हम लॉक लगा नहीं सकते। श्रिंकिंग फेज में हमने सिर्फ लॉक्स रिमूव करने, जो लग गए हैं ग्रोइंग फेज में उनको रिमूव करना है, ठीक है। तो ग्रोइंग फेज में हम लॉक्स लगाते हैं, उनको रिलीज नहीं करते, श्रिंकिंग फेज में हम लॉक्स रिलीज करते हैं, उनको लगाते नहीं, ठीक है। तो सपोज करो ट्रांजैक्शन T1 हूं मैं, ठीक है, और मुझे B के ऊपर लॉक चाहिए और मुझे A के ऊपर भी लॉक चाहिए, तो मैं B के ऊपर भी अभी लॉक लगा लूंगी, मैं ही सबसे पहले सब B के ऊपर लॉक लगाने के राइट्स रखती हूँ, मेरा ग्रोइंग फेज चल रहा है।
तो मैं बी के ऊपर भी लगाऊंगी, मैं ए के ऊपर भी लॉक लगाऊंगी, बी में से मैं माइनस करूंगी, ए में प्लस करूंगी, कोई और मेरे बी और ए के ऊपर लॉक नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा ग्रोइंग फेज चल रहा है। ग्रोइंग फेज चलने के बाद मेरा श्रिंकिंग फेज चलेगा मेरी ट्रांजैक्शन का, उस केस में मैं बी से रिलीज करूंगी, ए से रिलीज करूंगी, अब मेरे कोई लॉक्स नहीं है, अब किसी और का ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो सकता है। तो इट मीन्स जिसको मिल गया, जिसके पास लॉकिंग का प्रोसीजर आ गया, वो किसी के ऊपर भी लॉक्स लगा सकता है अपने ग्रोइंग फेज में। जब वो लॉक लगा रहा है, किसी और को लॉक लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसमें तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाता है, सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियल और पैरेलल दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो सीरियल मतलब इट विल बी मूव इन अ सीक्वेंस, एक के बाद दूसरा। मेरे लॉक्स हैं, मैंने लॉक्स रिलीज किए, अब तेरी टर्न है, एक सीक्वेंस। ठीक है, पैरेलल अप्रोच नहीं है। It can be proved that the transactions can be serialized in the order of their lock points, the point where transaction acquired its final lock. It's not important. ठीक है, पर टू फेज लॉकिंग डज नॉट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक्स। ये भी आपको फ्रीडम नहीं देती है डेडलॉक से। ठीक है, कैस्केडिंग रोलबैक इज पॉसिबल अंडर टू फेज लॉकिंग। टू अवॉइड दिस, follow a modified protocol called strict two-phase locking. Here, transaction works to hold all its exclusive locks till it commits or aborts. ठीक है बच्चे, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल होगी। सबसे तो ये डेडलॉक की एग्जांपल है, ये तो हमने की हुई है कि डेडलॉक्स क्या है। ठीक है, टी जे जो है वो टी आई के ऊपर वेट कर रहा है, टी आई जो है वो टी जी के ऊपर वेट कर रहा है। और चार कंडीशंस हैं जो डेडलॉक जो है वो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। ठीक है, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? ईच रिसोर्स असाइंड टू वन प्रोसेस और इज अवेलेबल। जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी एक को असाइन हुए हैं। सपोज करो मेरे सिस्टम में 10 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास प्रिंटर भी है, मेरे पास फैक्स मशीन भी है, तो सारी किसको? सिर्फ एक ही प्रोसेस को। वो प्रिंट भी कर रहा है, वो सिस्टम के ऊपर वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के भी बैठा हुआ है, तो दूसरा बंदा क्या है? दूसरा बंदा वेट करी जा रहा है, तो वो भी डेडलॉक है। ठीक है, होल्ड एंड वेट। होल्ड का क्या मतलब? जो मेरे पास है वो मैंने होल्ड किया हुआ है, एक मुझे और चीज चाहिए, ठीक है, वो कुछ कोई और रख के बैठा हुआ है, अपनी चीज मैं होल्ड करके बैठी हूँ, दूसरी की मैं वेट कर रही हूँ, तो ये भी डेडलॉक करता है। नो प्रीएम्पशन। ठीक है, नो प्रीएम्पशन का मतलब मुझे जो ग्रांट किया गया है, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ अपना रख के दूसरों की वेट कर रही हूँ, जो मुझे ग्रांट किया गया है वो मेरे से छीन नहीं सकते आप। ठीक है, चाहे मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे किसी और से कुछ रिसोर्सेज चाहिए अभी, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपका मेरा काम थोड़ा है और मेरे से आप रिसोर्सेज छीन के दूसरे का काम पहले करवा लो, तो आप मेरे से प्री एम्प्टी, पहले मेरे काम खत्म होने से पहले, प्री एम्प्टी का मतलब मेरा काम फिनिश होने से पहले आप मेरे से मेरे रिसोर्सेज नहीं छीन सकते, तो भी क्या होता है? डेडलॉक होता है। ठीक है, सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर तो ये एग्जांपल है, यहाँ पे मान लो 10 चीजें हैं, T1 T2 के लिए वेट कर रहा है, T2 कि ये छोड़ेगा अपना सिस्टम, T2 T3 के लिए वेट कर रहा है, T3 T4 के लिए वेट कर रहा है, T4 T5 के लिए वेट कर रहा है, T5 T6 के लिए वेट कर रहा है और T6 T1 के लिए वेट कर रहा है। मतलब एक सर्कल में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये अपना सिस्टम छोड़ेगा, ये अपनी ट्रांजैक्शन बंद करेगा, और वो फर्दर आगे के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये एक सर्कल बना हुआ है। इस केस में भी क्या है? डेडलॉक जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, और डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, और डेडलॉक को डिटेक्ट एंड रिकवर कर सकते। प्रिवेंट का क्या मतलब है? हो ही ना, है ना। प्रिवेंट deadlocks by restraining requests made to ensure that at least one of the 4 deadlock conditions cannot occur. इनमें से कोई भी एक कंडीशन ना हो, ये हम कोशिश करें, है ना। अवॉइड का मतलब है डायनामिकली ग्रांट्स अ रिसोर्स टू अ प्रोसेस if the resulting state is safe. ठीक है, a state is safe if there is at least one execution sequence that allows all processes to run to completion. ठीक है, हम क्या करते हैं? हम स्टेट्स चेक करते हैं इन बिटवीन, अगर ये वाला रिसोर्स ग्रांट करूं तो डेडलॉक तो नहीं होगा, अगर ये वाला रिसोर्स ग्रांट करूं तो डेडलॉक तो नहीं होगा। तो जब हमें लगता है कि स्टेट जो फाइनल स्टेट है वो सेफ है, ठीक है, if there is at least one execution sequence that allows all processes to run to completion. कितने सारे ऑप्शंस हैं,
इतने सारे वे से हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक भी ऐसा रास्ता मिल जाता है जो हमें लगता है कि डेडलॉक नहीं होने देगा, तो वो हम उस वाले प्रोसेस को, वो वाला सिस्टम जो है वो साइन कर देते हैं कि हाँ ये फर्दर 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 आगे ट्रांसफर करता जाएगा, तो हो सकता है इससे डेडलॉक ना हो। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, बच्चे ये डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस क्या सोचता है, ये सोचता है कि डेडलॉक हो ही ना, कोई ऐसे काम कर लें, है ना, जैसे आप कहते हैं ना कोरोना आपको हो ही ना, आप क्या प्रिवेंशन मेजर्स लगाते हो, क्या अवॉइडेंस मेजर्स लगाते हो कि आपको कोरोना हो ही ना। उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी क्या कहता है कि सपोज अगर आपको हो जाता है, इफ इट इज देयर, आपको हो गया है, अब आपने उसको कैसे डिटेक्ट करना है और उसकी रिकवरी कैसे करनी है। मीन्स अगर डेडलॉक हो गया है, डेडलॉक बन गए हैं, तो कैसे उनको तोड़ना है और कैसे उनको पहले ढूंढना है कहाँ पे हुए और कैसे उनको तोड़ने की कोशिश करनी। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है सबको? टू फेस लॉकिंग का क्या प्रॉब्लम था, अगर मैंने सारे सिस्टम मेरे पास हैं तो मैं ही उसके ऊपर सारा कंट्रोल रख के बैठी हूँ, अगर मुझे 10 दिन लग गए तो बाकियों को 10 दिन वेट करनी पड़ेगी, है ना। मैं T1 हूँ, T1 के पास A भी है B भी है, और T1 A और B दोनों का कंट्रोल रख के बैठा हुआ है, और उसको अगर 10 दिन लग जाते हैं तो बाकियों को वेट करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। जब सीरियलाइजेबिलिटी आ जाती है, एक सीक्वेंस में काम चलता है, तो वो भी स्लो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? मैसेज नहीं आ रहे मुझे, सो गए हो? चलो बच्चे, अब ये जो डेडलॉक है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, अवॉइडेंस, हाँ ठीक है। तो डेडलॉक को अवॉइड करने का हमारे पास एक तरीका है, वेट डाई रूल। ठीक है, वेट डाई रूल, या तो वेट कर ले भाई, नहीं तो मर जा। किसको कहा गया है? ट्रांसैक्शन को। ठीक है, जहां तो वेट कर, जा मर जा। अगर तो वो वेट करेगी, ठीक है, दूसरा अपना काम कर लेगा, दूसरा अपना ट्रांजैक्शन जो है वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, अगर तो भी दूसरे का काम चल जाएगा, डेडलॉक तो नहीं ना होगा, एक जना वेट कर लेगा, ठीक है, और दूसरा अपना काम करता रहेगा। अगर तूने वेट नहीं करना, ठीक है, अड़ना, मत जा। मत जा का क्या मतलब है? अपनी ट्रांजेक्शन खत्म कर दे और दोबारा अपनी ट्रांजेक्शन फिर शुरू कर ले। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। इसमें किसी एक को बलिदान देना पड़ रहा है, किसको बलिदान देना पड़ रहा है अभी मैं बताती हूँ। एक ट्रांजेक्शन है TI, मान लो T1 है, ठीक है, वो क्या कर रही है, किसी डेटा आइटम के ऊपर लॉक की रिक्वेस्ट मांग रही है, जो कि किसी और आइटम TG ने लॉक की हुई है। TI is requesting a lock on a data item, right, which is already locked by TJ. TI ने रिक्वेस्ट करनी है और रख के कौन बैठा है? लॉक TJ में। ठीक है, अब TI क्या कर सकती है? TI is permitted to wait, उसको वेट करने की परमिशन दी जाएगी। यू हैव टू वेट, वेट करने की परमिशन तभी दी जाएगी अगर उसका टाइम स्टैम्प बच्चे, हर एक ट्रांजैक्शन कुछ टाइम के लिए चलती है। जब भी ट्रांजैक्शन फॉर्म होती है उसका कुछ टाइम है, अगर उसका टाइम स्टैम्प, किसका, जो वेट करने को जिसको बोला गया है, उसका अगर काम करने का टाइम कम है, उसको कम टाइम लगना है, किससे? TJ से, तो उसको बोला जाएगा कि तू वेट कर ले भाई, क्योंकि तू अभी रुक जा, तेरा काम अभी जल्दी हो जाना है, अभी दूसरा रख के चाहे बैठा हुआ उसका काम होने दे, तेरा काम थोड़ा है, तुझे हम जल्दी दे देंगे क्या? लॉक। ठीक है, अगर उसका टाइम ज्यादा लगना है, जो करंट जिसने रखा हुआ है लॉक, उससे TI का टाइम ज्यादा लगना है, तो उसको अबॉर्ड कर देना, उसको हम फोर्सिबली बंद कर देते हैं और उसको फिर दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं उतने ही टाइम से, जितने टाइम के साथ उसने चलना था उतने टाइम के साथ उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो एक के पास लॉक है, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। जो दूसरा TI है उससे लॉक मांगने आ रहा है, उसको देखा जाएगा इसका टाइम कितना है, जो करंट चल रहा है उससे इसका टाइम अगर कम है तो इसको बोला जाएगा वेट, अगर जो करंट चल रहा है उससे इसका टाइम ज्यादा है तो इसको बोला जाएगा खत्म हो जा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा और इसको बाद में दोबारा स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक है,
सो यही लिखा हुआ है, अगर ts का टाइम स्टैम्प tj से कम है तो उसको वेट कहा जाएगा, t1 वेट एल्स t1 डाइज। नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि दूसरे से खाली नहीं करवाया जाएगा। अब टीजे काम कर रहा है, उसके पास लॉक है, तो उससे जबरदस्ती टीआई के लिए रिसोर्सेज छीने नहीं गए, उसे डेटा आइटम्स छीने नहीं गए। इसका मतलब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, काम होने से पहले छीना नहीं जाएगा। ठीक है, तो टीआई कभी भी, जो नया आया है बेचारा टीआई, वो कभी भी टीजे को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाएगा, पहले खाली नहीं करवा पाएगा उससे। ठीक है, और ये प्रेफर करती हैं यंगर ट्रांजैक्शन। सपोज करो सिस्टम स्टार्ट हुआ, ट्रांजैक्शंस आई, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस सबसे पहले जिसने अक्वायर कर लिया, ठीक है, उसके बाद किसको वेटिंग के राइट्स दिए जाएंगे, जिसका टाइम कम है, टीआई को वेटिंग के राइट्स दिए जाएंगे अगर वो यंगर है। यंगर मतलब अभी अभी, पहले तो अभी अभी पैदा हुई है, ठीक है, लेटेस्ट पैदा हुई है, और उसका टाइम कंप्लीट होने का कम है तो उसको वेट कराया जाएगा। अगर वो टाइम उसका वेट करने का ज्यादा है उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वाउंड वेट रूल। ये आप पढ़ो और मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। बच्चे इसमें ये वाउंड वेट रूल क्या है, उस केस में क्या था, टीआई आया, टीजे ऑलरेडी चल रहा था, है ना, इसमें वेट डाई में टीआई आया, टीजे ऑलरेडी रख के बैठा हुआ था लॉक, तो टीआई को देखा गया, अगर इसका टाइम कम था तो इसको वेट कराई गई, और अगर इसका टाइम ज्यादा था तो इसको बोला गया कि भाई जा। टीजे को बिल्कुल भी तंग नहीं किया गया। अब वाउंड वेट में क्या है, वही सिचुएशन है, टीजे चल रहा है, टीआई आया फिर, ठीक है, अगर ये वाला मेथड चल रहा है, टीआई आया और टीजे अपना काम कर रहा था, टीआई को क्या देखा गया, अब अगर टीआई का टाइम टीजे से ज्यादा है अब उसको वेट कराएगी। पहले क्या था, अगर उसका टाइम कम था तो उसको वेट कराई गई, और ज्यादा था तो खत्म कर दिया गया। अब उल्टा हो गया, इफ द टाइम इज मोर ऑफ टीआई तो उसको क्या कराया गया, वेट, कि तेरा बहुत टाइम है, तेरा बहुत टाइम है अभी टीआई, तू बहुत टाइम के लिए चलेगा, तेरा टाइम ज्यादा है काम करने का, तुझे ज्यादा टाइम लगेगा, और ये जो टीजे चल रहा है ये तो कम टाइम से जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसको करने दे, इसको अपना डेटा आइटम के ऊपर ऑपरेशन करने दे, तू अभी वेट कर ले, तुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टीआई का काम जल्दी हो जाना होता है ना, टीआई का टाइम चेक किया गया और वो टीजे से कम टाइम लेना चाहता है, ठीक है, तो टीजे से छीन लिया जाएगा, भाई तू बाद में कर ली अपने ऑपरेशंस, ये टीआई आया है, ठीक है, इट्स टाइम इज लेस, ठीक है, इसके दो की ऑपरेशंस हैं, इसके ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो पहले इसको ग्रांट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टीजे को अबॉर्ट किया जाएगा अब, और टीआई को लॉक ग्रांट कर दिया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बाउंड वेट में टीआई आया, टीजे चल रहा था, टीआई को देखा गया कि इसको ऑपरेशंस के लिए ज्यादा टाइम लगना है कि कम, अगर इसको ज्यादा टाइम लगना है तो टीजे को चलने देते हैं, वो तो कम टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको कम टाइम लगना है तो क्या करते हैं, टीजे से छीन लेते हैं, टीजे को बंद कर देते हैं और इसको दे देते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, अगर टीआई का टाइम कम है टीजे से तो टीजे को घायल कर दिया जाता है, उसको अगर अपना काम कर रहा है, उसको जंग में वो लड़ रहा है, उसको घायल कर दिया जाता है, और नहीं तो टीआई को वेट कराया जाता है, और ये प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब, अगर टीआई का टाइम कम है तो वो टीजे से छीन लेता है सारा कुछ, उसको घायल कर देता है, और ये ओल्डर ट्रांजेक्शन को प्रेफर करता है। ऑब्वियसली जिसका टाइम ज्यादा है
ठीक है, ओल्डर मतलब जो पुरानी हो चुकी है, कितने टाइम से वेट कर रही हैं और आ रही हैं, उसको प्रेफर करते हैं। ये क्लियर है बच्चे सबको? अभी एक पोल है मेरे पास, सिंपल सी पोल है, इसको जरा कर लो। ओके बच्चे, मैं इसको बंद कर रही हूँ अब। इसका जो आंसर था वो था ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग। ठीक है, एक्वायरिंग एंड लीजिंग भी अगर आपने लिखा है तो इट्स गुड। उसके बाद बच्चे डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, जब डेडलॉक हो जाता है ना, ये तो अवॉइड कर रहे हैं हम, प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए उसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, और दैट डिटेक्ट्स दैट वेदर, आई डोंट नो कि अगर आप उसमें कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम्स। ठीक है, सबसे पहले हम उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर हम उसको रिकवरी लगाते हैं। रिकवरी इज ऑलवेज बच्चे रोल बैक, है ना। डेडलॉक एक ऐसी, आप देखो देखो अगर आपके आसपास भी कहीं पे लड़ाई हो गई है, टू पीपल आर फाइटिंग, ठीक है, इट मीन्स अ डेडलॉक, दोनों एक दूसरे के साथ जिद रहे हैं कि ये नहीं ये नहीं ये, तो रिकवरी इज अ पर्सन वो विल कम और एक को बैक ऑफ करेगा, है ना, कि आप हट जाओ, या दोनों को बैक ऑफ किया जाएगा। इट मीन्स किसी ना किसी को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। इन दिस केस समवन हैज टू लीव हिज वर्क, उसको अपना काम रोकना पड़ेगा और दूसरे को अपना काम करना पड़ेगा। इस केस में हमेशा रोल बैक होता है ना। एक एक का काम जो है वो बिल्कुल, जो उसने जो करके वो आके यहाँ पे डेडलॉक में फंस गया है, वो बिल्कुल रोल बैक उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले दिया जाता है जहां से उसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और जब हम रोल बैक करते हैं तो कितनी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस होती है, कितनी अपडेशन वो चीज करके आ गई होती है आगे, तो उस चीज की भी हमें यहाँ पे मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। डिटेक्शन रिकवरी स्कीम रिक्वायर वेरियस काइंड्स ऑफ ओवरहेड्स लाइक runtime costs of maintaining necessary information and executing the detection algorithm. ठीक है, so this is all about deadlock detection and ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे जो है वो हो गया है। इसके अलावा जिससे मैं आपको पहले करवा रही थी कुछ सॉरी स्लाइड्स, जो स्लाइड मैं पहले यूज कर रही थी वो कहाँ है, दिस वन। ठीक है, इसमें भी इसमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगी, है वही है जो मैंने अभी आपको करवाया है। इसमें से जितना मैंने आपको करवाया सिर्फ वो आप देख लेना, थोड़ा ज्यादा डिटेल है इसमें। लास्ट में ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन भी है, कि जैसे कोई एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि कैसे यहाँ पे लॉकिंग प्रोसीजर्स ओरेकल में कैसे होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं दोनों आपको भेज दूंगी। और जितना मैंने करवाया है, यू कैन यूज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू, एंड जहाँ पे आपको जो समझ आता है यू कैन राइट फ्रॉम दैट। ठीक है, जो मेरे वाला था उसमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ओके, so if you have any query I will send both of these to you, and if you have any query you can ask me। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, otherwise I am ending this meeting।
क्वेश्चन है बच्चे? नो, प्लीज राइट नो. बच्चे क्वेश्चन रिलेटेड टू DBMS, नॉट फाइनल एग्जाम्स. When we will have any idea of final exam, हम आपको जरूर बताएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे information. Okay, then I will end this meeting. So we have one more tude class at 2. So hopefully I will start recovery in that class, database recovery. Okay. So all should join. Don't think that it's a normal tutorial class. I will cover one topic in that. Okay, then bye bye. Take care.